Yes friends, welcome to my new video. In this video, I am going to teach you about the universe and the earth. Yes friend, this is the first chapter of your SST book, Universe and the Earth. Before starting the chapter, you must know the word meaning of chapter 1. Students, here is the word meaning of chapter 1 and you have to write the word meaning in your SST copy. First word is vast. Vast means vishal, very huge and broad. Celestial body. Celestial body means heavenly body. Heavenly body में earth, sun, star, moon आते हैं जिन्हें हम heavenly body बोलते हैं. Space means अंतरिक्ष. Beyond the earth's atmosphere. Solar energy. Solar energy means सौर ऊर्जा. Radiant energy emitted by the sun. Fifth word is satellite. Satellite means उपग्रह. A heavenly or artificial body revolving round a planet. Dwarf. Dwarf means बौना. Object much below the usual size. Seventh word is opportunity. Opportunity means a chance or अवसर, मौका. Last word is partial. Partial means not completed. Adhura. Friends, come to the chapter. This is the first chapter of your SST book, and in this chapter you have to know about the universe and the earth. Universe means Brahman, world, and earth means Prithvi. Earth is the third planet of our solar system where we live. Now students, all of you listen carefully. I will read the chapter and explain you. First we know about the universe. The universe is a huge and endless expansion of millions and millions of stars with all the heavenly bodies which are called as galaxies. हमारा यूनिवर्स जो है बहुत विशाल है. एंडलेस, इसका कहीं अंत नहीं है. इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं. हेवनली बॉडीज में अर्थ, सन, मून, स्टार्स आते हैं और ये गैलेक्सीज कहलाते हैं. Look at the sky during the day and at night. What do you observe, students? When you look at the sky during day and night, what do you observe? आप क्या देखते हो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? During the daytime, the sky looks blue with clouds. जब दिन में देखते हो स्काई को तो ये ब्लू दिखता है, बादल के साथ ये ब्लू दिखता है आपको, बट एक्चुअली इट इज नॉट ब्लू. लेकिन ये ब्लू होता नहीं है. The earth is surrounded by the layers of gases called atmosphere. Friends, our earth is surrounded by layers of gases. It is called atmosphere. हमारी पृथ्वी जो है बहुत सारे गैसों से घिरी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. In the sky, we see the sun during the daytime and the stars and the moon in the dark and a clear night. Friends, दिन के टाइम में हम लोग स्काई में सूरज को देखते हैं और रात के टाइम में स्टार्स और मून को देखते हैं. Now friends, we will know about the space and the earth. Friends, अब हम लोग अंतरिक्ष और पृथ्वी के बारे में जानेंगे. In the universe, our earth is a tiny part of the galaxy called Akashganga or Milky Way. Galaxy means groups of stars. There are many groups of stars in our universe in which Earth is a tiny part. This is called Akashganga or Milky Way. Friends, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं और इसमें अर्थ जो है बहुत छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग आकाशगंगा या मिल्की वे बोलते हैं. Including our earth, the sun, the moon and the stars all are celestial bodies. Friends, हमारी पृथ्वी, सन, मून और सूरज जिन्हें हम celestial bodies बोलते हैं. Celestial bodies means heavenly body. Heavenly body में अर्थ, सन, मून और स्टार्स आते हैं. Now, our earth is one of the planets of the solar system which revolves around the sun on a fixed path with its natural
satellite, the moon. Students, the moon is a natural satellite. Students, as you know, Earth is third planet in our solar system which revolves around the sun on a fixed path with its natural satellite, the moon. स्टूडेंट्स, अर्थ जो है सूरज के चारों ओर फिक्स्ड पाथ पे जो है वो घूमते रहता है मून के साथ. मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है. द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स. स्टूडेंट्स, सूरज के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 24 आवर्स लगते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द स्टार्स. इन द डार्क नाइट मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई. स्टूडेंट्स, रात में बहुत सारे स्टार्स टिमटिमाते रहते हैं स्काई में. इन फैक्ट द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज. वास्तव में स्टार्स जो हैं, तारे जो हैं, बहुत बड़ा हेवनली बॉडीज हैं जो पृथ्वी से बहुत बड़ी है. मच बिगर देन आवर अर्थ. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ये तारे जो हम लोगों से बहुत दूर हैं. सो दे लुक स्मॉल इन साइज. ये हम लोगों से, ये पृथ्वी से इतनी दूरी पे है, इसीलिए हम लोगों को छोटी दिखती है. द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. स्टूडेंट्स, स्टार्स जो है वो जलता हुआ गैस का गोला है. द स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक द सन. स्टार्स के पास भी सन की तरह अपना हीट और लाइट है. आवर सन इज ऑल्सो स्टार. हमारा सूरज भी एक स्टार है, एक तारा है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल नो अबाउट द कॉन्स्टेलेशन. वी कैन सी मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन डिफरेंट पैटर्न्स इन द डार्क नाइट्स विच आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बियर. स्टूडेंट्स, हम लोग इस रात में बहुत सारा स्टार्स का ग्रुप देखते हैं स्काई पे जो डिफरेंट पैटर्न बनाते रहते हैं. उसे ही हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. कभी कभी ये बियर का पैटर्न पे रहते हैं, बियर के पैटर्न पे रहते हैं, जिसे हम लोग ग्रेट बियर बोलते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट द फिगर. हियर इज द फिगर ऑफ कॉन्स्टेलेशन. देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टार्स का ग्रुप है. यहाँ पे जब अपना डिफरेंट पैटर्न जब ये स्टार्स बनाते हैं तो इसे हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. इन द डार्क नाइट we can see a very bright star in the north direction which is known as the polar star. स्टूडेंट्स, रात के टाइम में हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में एक स्टार देखते हैं जो बहुत चमकता, बहुत ब्राइट करता है. हम लोग उसे ही पोलर स्टार बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल नो अबाउट द सन एंड द सोलर सिस्टम. स्टूडेंट्स, अब हम लोग सूरज और सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे. द सन इज a star nearest to our earth. स्टूडेंट्स, सन ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है. इट इज़ राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर. ये गोल है और बॉल ऑफ फायर है, बहुत विशाल सा आग का गोला है. हॉट बर्निंग गैसेस, आग के गोले से बना हुआ है. ये बहुत विशाल है और आग के गोले से बना हुआ है. इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. और ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे है. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस फिगर. हियर इज सन. सन इज द ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड इट इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट गिव्स अस हीट, लाइट एंड एनर्जी. स्टूडेंट, सूरज हमें हीट, लाइट और एनर्जी देता है. One can use the solar system wisely for different purposes such as cooking, lighting, heating water, moving machines and cars, etc. Students, look at this figure. This is a figure of solar system, and solar system is used for many purposes such as cooking, lighting, heating water, moving machines and cars. Students, ये solar system है और इसका काम जो है खाना बनाने में, लाइटिंग में, पानी को गर्म करने में, मूविंग मशीन्स और कार और मशीन को चलाने में सोलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.